All right, so let's start today's session that is on search engine optimizations. So, what is search engine optimization? Let me share my screen first. All right, so I would like to ask how many of you have started your course and how many of you have completed your first video that is on the session that I took yesterday on digital marketing fundamentals. So कल मैंने आपका एक सेशन लिया था फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का. उसमें से कितने स्टूडेंट्स ने अपना कोर्स स्टार्ट किया है और कितने स्टूडेंट्स ने अपना कोर्स का फर्स्ट वीडियो अटेम्प्ट करके अपना क्यूज अटेम्प्ट किया है. सो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करें यस और नो करके. You can type in the chat box. Yesterday I took a session on fundamental of digital marketing and Google Ads. So now I'm asking to all the students who have joined us today that how many of you have completed that two videos that is on Google Ad and on digital marketing. How many of you have completed or started those videos? Please say yes or no or type yes or no in the chat box. Okay, we have one response, so yes. Okay, Navneet is saying that she has not started yet. Okay, but most of the student have started their course and they have watched two videos that is on Google Ads and on fundamental of digital marketing, right? Okay. Okay, so for the student who are typing no, so may I know the reason why you have not started or not watched these videos on Google Ads and on the next topic on digital marketing? So may I know the reason behind it, why you have not started it yet? Because yesterday I took your session on both the topics. So if you would have watched those videos, then I may be able to clear all your doubts if you have any. बट अगर आप वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपके डाउट्स कैसे निकलेंगे? सो प्लीज आप टाइप करें आपने अभी तक वीडियोस क्यों नहीं देखा है. आई जस्ट वांट टू नो द रीजन. यस, हरजीत, रितु, तरुणदीप has started today. Okay, Simran, Navneet. So why you people have not started it yet? Is there any reason or whatever the possible reason that you have not started it? Because yesterday I took your session on digital marketing and on Google Ads. So I was assuming that you would have started these two topics and complete it by today so that you may collect your doubts. ये वीडियोस आपने जो कोर्स के लिए एनरोल किया है, आपने फ्यूचर स्किल प्राइम पे एनरोल किया होगा एक कोर्स के लिए, डिजिटल मार्केटिंग वाले के लिए. तो उसमें जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो वाली वीडियोस देखनी है. आई गेस कुछ लोगों को अभी ये भी श्योर नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी कंफर्म नहीं है कि कौन सी वीडियोस देखनी है. तो मैं बता देती हूँ जिन स्टूडेंट्स को अभी अवेयरनेस नहीं है. आपने स्टार्टिंग में डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के लिए एनरोल किया होगा फ्यूचर स्किल्स प्राइम पोर्टल पे. तो फ्यूचर स्किल्स प्राइम पोर्टल पे आपके जीमेल के यूजर नेम से और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है. लॉगिन करने के बाद यू विल लैंडेड टू द सोशल मोबाइल स्किल्स वेबसाइट एंड वहां पे जाके आपको इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस देखने हैं. तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा कौन से वीडियोस देखने हैं. Okay, so I have received the responses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, only 13 students are active. So I would request to rest of the students, please type yes in the chat box so that I have idea that you people are attentively listening or you people are attentively present here. And in this way, we can resume our session on today's topic that is on search engine optimization. जो students अभी हमें join किए हैं, वो चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे अगर उन्होंने अपना कोर्स जो वीडियो है फ्यूचर स्किल्स प्राइम का वो देखना स्टार्ट कर दिया है. तो हमारे पास अभी अराउंड 43 स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं एंड 43 में से मुझे सिर्फ 12-13 रिस्पॉन्सेज मिले हैं अभी. ओके, वेरी गुड. हरजीत हैज स्टार्टेड. मीनाक्षिनी
Okay, Mehak Saini, I apologize. So Mehak Saini have started. Okay, Ruhal Singh has started. Good. फ्यूचर स्किल्स प्राइम पे आपका कोर्स है एक डिजिटल मार्केटिंग का, उसकी वीडियोस देखनी है. ओके, रितु इज प्रेजेंट, दिव्या इज प्रेजेंट, निशा इज प्रेजेंट. ग्रेट. आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको कौन सी वीडियोस देखनी है. ओके, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट अवेयर कि कौन सी वीडियोस हमने देखनी है. फ्यूचर स्किल्स प्राइम पोर्टल पे आपने एक कोर्स के लिए एनरोल किया होगा, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. मैं आपको लिंक भी शेयर कर देती हूँ. मैंने चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है, learn.futureskillsprime.in यूजर लॉगिन. आप क्या करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, वहां पे जाके अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे. अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं. राइट. तो आपने क्या करना है, इस पे जाके क्लिक करके, जो लिंक मैंने यहाँ शेयर किया है इस लिंक पे क्लिक करके अपना यूजर नेम मीन्स ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना है. पासवर्ड आपको याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन यूज कर लें. देन आपको पता लग जाएगा कौन सा वीडियोस आपको वॉच करने हैं. तो कल मैंने 2 सेशन लिए थे, गूगल एड्स और फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पे. राइट. तो अभी आपको वो दोनों टॉपिक्स के जो वीडियोस हैं और क्यूज है वो कंप्लीट करना है. राइट. ओके, सो चलो आज का टॉपिक है हमारा, वो स्टार्ट करते हैं. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस. राइट. सो प्लीज कंफर्म करें मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं. जस्ट लेट मी शेयर फर्स्ट. So I am sharing my entire screen here. So it will take a few minutes to open it. Just wait for a while. All right. So आज का टॉपिक है हमारा ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ. फर्स्ट ऑफ ऑल एसईओ क्या होता है मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट मैं बनाऊं तो उसकी रैंकिंग क्या है आपके गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज में. जब कोई उस वेबसाइट को सर्च करे गूगल सर्च पे तो उस वेबसाइट की रैंकिंग क्या है, और वो रैंकिंग डिसाइड होती है आपके 2-3 फैक्टर से. दैट इज एसईओ. ये उस वेबसाइट की एसईओ कितने अच्छे तरीके से हो रखी है. तो एसईओ का मीनिंग है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. राइट. सो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है तो कंफर्म कर दें. इज इट विजिबल? So that I can continue. Okay, it's visible, right? All right. So the topic of discussion for today is SEO, that is search engine optimization. What is SEO? Search engine optimization. And why SEO is important? So that आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, उस वेबसाइट की गूगल सर्च क्या रैंकिंग है, वो रैंकिंग कैसे डिसाइड होगी. वो रैंकिंग डिसाइड होगी उस वेबसाइट की कितनी अच्छी तरीके से एसईओ हो रखी है. तो एसईओ हमारे पास 2 तरीके से होती है.
ऑन पेज एंड ऑफ पेज। फर्स्ट इज ऑन पेज एसईओ, सेकंड इज ऑफ पेज एसईओ। अभी हम डिस्कस करेंगे ऑन पेज एसईओ एंड आफ्टर ब्रेक हम डिस्कस करेंगे ऑफ पेज एसईओ। सो व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? On page optimization is also called as on site optimization. On page optimization SEO का पार्ट है और इसको करते कैसे हैं? लेट्स से मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे करूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर 12th क्लास, मैं कल वाला एग्जांपल लूंगी अभी जो कल मैंने एग्जांपल लिया था। कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर 12th क्लास। तो अभी आप चेक करेंगे, मैं जैसे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक हमारे पास आ रहा है जस्ट डायल का, सेकंड आ रहा है अर्बन प्रो, थर्ड है आपका फिजिक वाला एंड थर्ड इज अर्बन प्रो अगेन। नाउ आपका कोई भी वेबसाइट आप बनाते हैं अपने किसी भी बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट को ऑफर करने के लिए, अपनी सर्विसेज को ऑफर करने के लिए, तो उस समय अगर आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग किस तरीके से है, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग किस नंबर पे होनी चाहिए। जैसे इस केस में जो हमारी रैंकिंग है वो है, जैसे फर्स्ट जस्ट डायल की है, सेकंड अर्बन प्रो की है, थर्ड फिजिक वाला की है, अगेन अर्बन प्रो है। तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि ये फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा? क्योंकि जब मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर 12th क्लास, तो मेरे को जो वेबसाइट पहले दिखेगी मैं उस पर क्लिक करूंगी, मैं नीचे नहीं जाऊंगी यहाँ पे, राइट? वैसे तो बहुत सारी हैं, देखो FB41 क्लासेस, गुरुकुल, फॉर्च्यूनर, टारगेट स्टडीज। लेकिन मेरा प्रैक्टिस ये रहना चाहिए कि मेरी जो वेबसाइट है वो सबसे ऊपर हो, राइट? और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि कोई भी यूजर जब सर्च करता है यहाँ पे और मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी तो वो मेरी वेबसाइट पे सबसे पहले क्लिक करेगा रेदर देन गोइंग बिलो। वो नीचे यहाँ पे क्लिक नहीं करेगा किसी भी वेबसाइट पे, वो ऊपर वाली जितनी भी वेबसाइट्स उनको दिख रही हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट? लेट्स से मैं अगर कोई यूजर हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, राइट? तो ये सर्च करके मैं स्टार्टिंग के 3-4 देख लूंगी, फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया, थर्ड देख लिया, फोर्थ देख लिया, शायद इससे नीचे मैं नहीं जाऊंगी, राइट? तो वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं लेकिन हमें तो अपनी वेबसाइट को बेस्ट रैंक कराना है क्योंकि गूगल के पास बहुत सारा डेटाबेस है, उसमें बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। तो लेट्स से ये वाली अगर मैं अपनी वेबसाइट ओपन करूं तो इसमें कुछ एसईओ के पार्ट्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो क्या वो चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है सो दैट हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो बेटर हो पाए? वो क्या चीजें हैं? वो हैं meta tags, keyword placement, keyword density. So what is meta tag, what is keyword placement, what is keyword density? अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूं तो यहाँ पे जो ये है ये टाइटल है आपका, ये आपका लिंक है वेबसाइट का, ये हेडिंग है आपकी, और ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्क्रिप्शन है, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितनी चीजों में मैंने डिवाइड कर दिया, टाइटल, देन लिंक, देन हेडिंग एंड देन दिस इज द डिस्क्रिप्शन, राइट? तो अब ये सब चीजें होनी चाहिए। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है? कीवर्ड देखो मैंने यहाँ पे टाइप किया था कोचिंग, देन इंस्टीट्यूट्स, देन फॉर, देन 12th, देन क्लास। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स जो हैं वो कीवर्ड्स कंसीडर होंगे। तो जब मैं ये वाले कीवर्ड्स यहाँ पे अपने गूगल सर्च बॉक्स में एंटर कर रही हूँ तो ये वाले कीवर्ड आपको यहाँ भी दिखेंगे, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है कोचिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ लिखा है, हाँ जी, क्लास लिखा है 12th, हाँ जी, अगेन क्लास 12th, अगेन कोचिंग, अगेन क्लास, अगेन क्लास। और आप देखेंगे ये सारी की सारी चीजें बोल्ड में है, मीन्स बोल्ड। अगेन अगर मैं फर्स्ट वाले में देखूं तो देखो यहाँ पे क्लास 12th है, कोचिंग क्लास है, सारे कीवर्ड्स यहाँ पे हैं। इसीलिए ये चीज सर्च करी यहाँ पे कि क्लास भी है, 12th भी है, कोचिंग क्लासेस भी हैं और कोर्सेज भी हैं। तो ये एक बेसिक सा इसका फंडामेंटल है कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग किन चीजों के ऊपर डिसाइड करेगी। वो फैक्टर डिसाइड करते हैं आपके एसईओ टेक्निक्स। तो हमारे पास दो टाइप की एसईओ होती है, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। अभी हम पढ़ रहे हैं ऑन पेज। तो मेटा टैग्स होता है, कीवर्ड प्लेसमेंट है, कीवर्ड डेंसिटी है। मेटा टैग्स हो गए आपके ये वाला डिस्क्रिप्शन, राइट?
कीवर्ड्स हो गए जैसे जो मैंने यहाँ एंटर किया और जो यहाँ पे हो रहा है, और कीवर्ड डेंसिटी मतलब कितने कीवर्ड आपने यूज किए हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन कैसे कैसे होती है। अच्छा, यही यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप प्लीज पहले मेरे से कंफर्म कर लें, देन फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगी। ओके, खुशी सिंह मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके ओके, मे बी आपको ये टॉपिक थोड़ा हैवी लग रहा होगा। आपने अब लेक्चर नहीं देखे ना, इसलिए तो मैं बोल बोल आपको कल बोला था मैंने कि आप लेक्चर देख के आओ पहले, सो दैट आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाए। अगर आप लेक्चर देख के आएंगे ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड सेशन है, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। अगर आप पहले से बेसिक्स नहीं पढ़ के आओगे तो आपको एकदम से सब कुछ सिर के ऊपर से जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको जो रिकॉर्डेड सेशन है वो देखने हैं, सो दैट आपका बेसिक क्लियर हो जाए। ओपन नहीं हो रहा है, विल बी गिवन लेक्चर रिकॉर्डिंग डेली। हाँ जी, रिकॉर्डिंग्स तो देंगे हम लोग। ओपन नहीं होता, मना किया था। नहीं, ओपन तो होते हैं लिंक्स जो हैं। अच्छा, क्या समझ नहीं आ रहा है, आप अपने डाउट्स टाइप कर दो यहाँ पे। एक है मेरे पास डाउट कि मेटा टैग क्या होता है। ओके, और जो जो डाउट्स हैं वो आप पूछ लें। ये हमारी वेबसाइट्स हैं और ये वेबसाइट्स के हमारे मेटा टैग हो गए। जैसे मैंने इस वेबसाइट्स पे क्लिक किया, ये वाले कीवर्ड्स हैं हमारे पास। क्लास 12th इज द कीवर्ड, कोचिंग इंस्टीट्यूट इज द कीवर्ड। और ये वाला जो मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब है स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट योर वेबसाइट। मेटा डिस्क्रिप्शन इज द स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट योर वेबसाइट। मेटा टैग क्या होता है? मेटा टैग होता है जब आप ये वेबसाइट बनाएंगे तो वहां पे ये डिस्क्रिप्शन आप टैग के अंदर लिखेंगे, तो इसको मेटा टैग बोल दिया। अदरवाइज आप इसको मेटा डिस्क्रिप्शन से अंडरस्टैंड कर लें। ये मेटा डिस्क्रिप्शन है आपकी दिस डिस्क्रिप्शन, मतलब एक डिटेल डिस्क्रिप्शन आपकी वेबसाइट्स के बारे में, राइट। ये वाला जो पार्ट है वो आपका डिस्क्रिप्शन है। इस केस में जो ये वाला जो आपका डिस्क्रिप्शन है इस वेबसाइट का, वो मेटा डिस्क्रिप्शन है। सो ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स होती हैं हमारे पास बहुत सारी। जैसे आप अपनी डोमेन नेम आप अपना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, टैग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, साइट मैप कर सकते हैं, होस्टिंग कर सकते हैं, तो मेटा टैग्स दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जब मैं वर्डप्रेस का आपका सेशन होगा एक, जब वर्डप्रेस का सेशन हो जाएगा तो उसमें आपका एक इसका प्रैक्टिकल आएगा। तो वो प्रैक्टिकल हम तब करवाएंगे जब वर्डप्रेस का सेशन लेंगे, और वर्डप्रेस के सेशन को लेने के बाद हम आपको बताएंगे आप अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, और उस वेबसाइट को बनाने के बाद उसकी एसईओ कैसे करनी है, वो सब आप प्रैक्टिकल के परफॉर्म करेंगे। ओके, तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऑन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आप कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला आता है आपका कीवर्ड रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब कि ये वाले जो कीवर्ड्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और 12th क्लास, इनकी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी कि आपने कौन कौन से टैग्स यूज करने हैं, कौन से टैग्स यूज नहीं करने हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, 12th क्लास है, तो ये मेरे कीवर्ड्स हैं और ये कीवर्ड्स मेरे यहाँ भी आ रहे हैं, तो कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है हमें। तो कीवर्ड रिसर्च के क्या है, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के हमारे पास टूल्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है। मैंने कर दिया कीवर्ड रिसर्च टूल फ्री। अब मेरे को यहाँ पे दो तीन टूल्स जो इम्पोर्टेंट है, एक है Href वालों का, सेकंड है वर्ड स्ट्रीम और थर्ड है कीवर्ड टूल्स। तो आप इनमें कर सकते हैं, तो मैं थर्ड वाला यूज करूंगी, keywordtool.io। तो ये लिंक भी मैं शेयर कर देती हूँ। ठीक है, मैंने लिंक शेयर कर दिया। अब आप यहाँ पे करेंगे कीवर्ड, जैसे मेरे को सर्च करना है
12th क्लास ट्यूशन कोचिंग, राइट। अब मेरा क्या मोटिव है यहाँ पे कि मेरे को एक वेबसाइट बनानी है, मेरा कोई बिजनेस है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, राइट, और मुझे उसके लिए वेबसाइट बनानी है। उस वेबसाइट में मुझे बेटर एसईओ करनी है, लेकिन बेटर एसईओ कब होगी? जब मैं उसमें अच्छे कीवर्ड्स ऐड करूंगी। बेटर एसईओ का मतलब है कि मेरी वेबसाइट जो है वो गूगल सर्च पे सर्च होनी चाहिए, है ना, सर्च होनी चाहिए वो गूगल सर्च इंजन पे जाके। तो जब वो सर्च होएगी तब आपका जो वेबसाइट है वो गूगल पे सबसे पहले आना चाहिए, सेकंड लिस्ट पे आना चाहिए, थर्ड पे आना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके जो वेबसाइट है उसकी रैंकिंग 14th 15th नंबर पे पड़ी है। दिस शुड नॉट हैपन, ठीक है। तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया 12th क्लास कोचिंग, ठीक है। ये करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूंगी। तो अब देखो आप यहाँ पे जब आपने सर्च पे क्लिक किया तो सर्च पे क्लिक करते ही आपको आएंगे, जस्ट वेट, ये फीचर इनका प्रो में है और टोटल कीवर्ड्स आपके पास है। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको फ्री वाला ही शो करती हूँ क्योंकि इसमें इन्होंने पेड कर दिया है अब। लेट मी शो, ओके, जस्ट अ मोमेंट, गिव मी अनदर मिनट। आई हैव ट्राइड कीवर्ड टूल बट वो अब इन्होंने फ्री नहीं किया है, वो उन्होंने पेड कर दिया है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें वही टूल यूज़ करने हैं जो फ्री होंगे, क्योंकि पेड के लिए तो आप अभी कोई टूल खरीद नहीं सकते हैं। ओके, ठीक है। तो इन्होंने कर दिया, हमें एक मैच कर दिया। 12th क्लास कोचिंग मैंने किया था, तो 12th क्लास कोचिंग नियर मी के लिए इन्होंने बता दिया कि आपका जो है ये 70% वॉल्यूम है इस कीवर्ड पे। इसका मतलब ये हुआ कि 70% लोग जो हैं वो इस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं। तो आपके लिए कीवर्ड जो है वो बेटर है। तो मतलब अगर जैसे मैं हूँ, मेरे साथ कोई 100 यूजर्स हैं और वो गूगल पे सर्च कर रहे हैं जी 12th क्लास कोचिंग, तो मेरी वेबसाइट में ये कीवर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है इन टर्म ऑफ एसईओ। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों वर्ड्स 12th क्लास कोचिंग मेरी वेबसाइट में होना जरूरी है। तो मेरी वेबसाइट में कैसे होंगे? जब मैं इनको टाइटल में ऐड करूंगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगी। मैंने आपको बताया ना टाइटल क्या होता है, जैसे फिर से लिख रही हूँ मैं 12th क्लास कोचिंग, ठीक है। मैंने एंटर किया, देखो आप यहाँ पे अब क्या है, ये कीवर्ड क्या है, 12th क्लास कोचिंग, तीनों कीवर्ड है। और देखो ये मेरा टाइटल है, ये मेरा लिंक है जिसपे हम लैंड करेंगे या जिसपे हम क्लिक करके जाएंगे। यहाँ पे देखो हेडिंग्स पे क्लास भी है, 12th है, दो कीवर्ड्स आ रहे हैं, कोचिंग नहीं है बट चल जाएगा, दो कीवर्ड मैच कर रहे हैं तो चल जाएगा। क्लास भी है, 12th भी है। अब आते हैं हम नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन पे, या मेटा टैग हम बोलेंगे इसको। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में जब हम आते हैं तो देखो कोचिंग क्लासेस हैं यहाँ पे, है ना। तो मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सॉरी टाइटल, लिंक, हेडिंग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे उन कीवर्ड्स का होना बहुत जरूरी है जो आपके यूजर्स यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, क्योंकि वो यूजर्स ये टाइप करें तो हमारी वेबसाइट उस टाइम शो होनी चाहिए। और वो कब शो होगी? जब ये वाले कीवर्ड हमारी वेबसाइट में होंगे। कब शो होगी? जब ये वाले कीवर्ड हमारी वेबसाइट में ऐड होंगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम करेंगे आपके uses of keywords while doing SEO, and we need to make sure to use those keywords in our website in term of SEO, in term of search engine optimization view, and that is why keyword research is the important part. ये टेक्निक्स हैं आपकी कि कैसे कैसे आप एसईओ कर सकते हैं, और उनमें से एक है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के बहुत सारे बाकी टूल्स भी आपके पास आते हैं, सैमरश है आपके पास एक, और Hootsuite है, जस्ट अ मोमेंट है। वैसे सैमरश जो है वो पेड सॉफ्टवेयर है, तो इसमें हम हमारे को, मेरे पास पड़ा तो है इसका ट्रायल, जस्ट लेट मी चेक, आई वुड हैव इट। I need to log in with that, just a moment. ओके, सो ये हमारा एक
सैमरिश है हमारा एक टूल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये देखेंगे आप लेफ्ट पैनल में, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं एंड दिस इज द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ एसईओ। या आप एसईओ के टाइम पे जो कीवर्ड रिसर्च करेंगे उसके बहुत सारे टूल्स रहते हैं, फ्री टूल्स हैं, पेड टूल्स हैं। तो सैमरश जो है वो पेड टूल है, तो मैं आपको एक जो बेसिक वर्जन है इसका पेड वाला वो यूज कर रही हूँ अभी। तो यहाँ से देखो कॉम्पिटिटिव रिसर्च आप कर सकते हैं, डोमेन का भी ओवरव्यू, ये अभी आपको मैंने बताया नहीं है, तो अभी के लिए फिलहाल आप कीवर्ड रिसर्च पे ही देखो, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लिंक बिल्डिंग आती है, कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। इंडिया तो है, लेकिन इंडिया में आपको कहाँ करनी है वो देखना पड़ेगा। रुको मैं सर्च करती हूँ, चंडीगढ़ अगर आएगा तो आ गया, ठीक है। तो मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर ली यहाँ पे चंडीगढ़। तो आप करेंगे सर्च। तो जैसे आपने सर्च किया इस कीवर्ड को तो आप देखेंगे कि क्लास 12th कोचिंग, कितना आइडिया है इसके ऊपर, वॉल्यूम देखो कितना है, 720 people are searching for this, 390 are searching for this, 390 are searching for this, 390 are searching for this, again 320 are searching for this, राइट। वॉल्यूम आप देख सकते हैं, हर कीवर्ड का अपना अपना एक वॉल्यूम है। केडी मीन्स कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, तो यहाँ पे 24 है। तो आपको कंटेंट आपका अपना क्वालिटी वाला कंटेंट आपको पब्लिश करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे। तो ये थोड़ा सा लेवल हायर जा रहा है, तो मैं इसको लेवल को थोड़ा सा डाउन करूंगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी बेसिक्स का भी नॉलेज नहीं है। सो आई विल नॉट डीप डाइव इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, राइट। सो ये थोड़ा सा बेसिक आपके लिए कि आप इस टूल को भी यूज कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए, राइट। सो कमिंग बैक, अब मेटा टैग्स क्या होते हैं आपके, मेटा टैग्स क्या होते हैं, कमिंग बैक, मैं फिर से वेबसाइट पे आ रही हूँ। क्लास 12th कोचिंग, राइट। तो मेटा टैग क्या है, तो मेटा टैग है आपका जो ये वाला डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। अब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ इस वेबसाइट पे, राइट। इस वेबसाइट पे क्लिक करके मैं इसका, जस्ट अ मोमेंट, ये वाला वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट में अलग अलग चीजें हैं, जैसे इसका लोगो है, टाइटल्स हैं, अगेन इसकी टेक्स्ट है। आपने इस मेटा डिस्क्रिप्शन चेक करना है कि इसका मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है इस वेबसाइट का। तो मैं इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, ये इसका कोडिंग पार्ट है। अभी जब आप वर्डप्रेस का सेशन करेंगे देन यू गेट टू नो कि वर्डप्रेस में कैसे वेबसाइट बनती है, राइट। तो आपने जब इसका मेटा डिस्क्रिप्शन सेट करना है, जो एक डिस्क्रिप्शन होती है वो सेट करनी है, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, ये वाला जो कीवर्ड है वो मेटा डिस्क्रिप्शंस में, मेटा टैग में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये वाला कोडिंग पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, बट दिस इज नॉट फॉर यूज, बिकॉज जब आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें कोडिंग यूज नहीं होगी, उसमें सिंपल प्लेटफॉर्म की हेल्प से ही आपका वेबसाइट बन जाएगा। तो वी विल हैव अ सेशन ऑन वर्डप्रेस एज वेल। Over there you will be learning that how you can create a website using WordPress. You don't require any knowledge of this code, right? तो मेटा डिस्क्रिप्शन आपका वो वाला पार्ट आ गया कि मेटा डिस्क्रिप्शन आपने कैसे सेट करनी है। बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी क्या चीज़ है कि आप जब किसी वेबसाइट पे लैंड करेंगे, जैसे ये वाला वेबसाइट है, ये वाला, तो इस वेबसाइट पे लैंड करने से पहले से, ये इस वेबसाइट पे मैंने क्लिक कर दी तब तो मुझे पता चल ही गया कि किस चीज़ के बारे में है, ये ऑनलाइन लर्निंग की वेबसाइट है। लेकिन वेबसाइट पे अभी मैंने क्लिक नहीं किया है और मुझे उसके बारे में पता चल गया कि किस चीज़ की वेबसाइट है ये, तो ये होती है आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन, कि अभी किसी यूजर ने क्लिक नहीं किया आपकी वेबसाइट पे, बट फिर भी उस यूजर्स को पता लग जाएगा कि किस किस चीज़ की वेबसाइट है। जैसे ये एक्सपीरियंस टॉप नॉच क्लास 12 ऑनलाइन कोचिंग बाय फिजिकल लैब, आवर प्रोग्राम ऑफर एक्सपर्ट फैकल्टी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, राइट। इन्होंने अपने कोर्सेज के नाम भी बताए हैं, संकल्प, प्रगति, परिश्रम, right? So these are the campaign name for these courses. So basically this is what your meta description is. Coming back to our PPT now. Next is content. मैं डिटेल्स में आपको
यहीं पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, आगे वेबसाइट में भी वही है कि कीवर्ड्स आपके क्या रहते हैं। कीवर्ड्स क्लियर है, मेटा टैग क्लियर है। अब आते हैं हम लोग कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में आपके पास बहुत अच्छा एक रहता है, जस्ट अ वेट। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे पास, कि जब भी आप कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस में जाते हैं तो आप अपने कंटेंट को रिफाइन करते हैं कि वेबसाइट में डालने से पहले आपका वो कंटेंट जो है वो रिफाइन होना चाहिए। उसमें कितने कीवर्ड आपने यूज़ करने हैं, यूज़र फ्रेंडली कीवर्ड आपके हैं या नहीं है, यूज़र को बेनिफिशियल हैं या नहीं है, कंटेंट आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, इधर उधर से कॉपी पेस्टेड नहीं होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, कंटेंट में आपका टेक्स्ट होना चाहिए, ऑडियो होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, इन्फोग्राफिक होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपकी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कंटेंट में टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, इन्फोग्राफिक है, तो ये सब चीज़ें आपकी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के तरीके से इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी हम करेंगे कैसे कंटेंट को ऑप्टिमाइज। पहले आपको देखना है कि इंडस्ट्री सेक्टर कौन सा है, रिसर्च करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर कीवर्ड्स का एक लिस्ट बनाएंगे, उन कीवर्ड को सर्च करेंगे। जैसे मेरा कोचिंग, अगर मैं अपनी वेबसाइट की बात करूं, कोचिंग क्लासेस फॉर 12th, तो मेरा कंटेंट इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा, कोचिंग क्लासेस, 12th क्लास, कोर्सेज। अब मैं फिजिक्स वाली इस वेबसाइट पे फिर से लैंड कर रही हूँ, सो दैट यू गेट टू नो कि how to uh, how to create your optimized content, or how to do optimization for your content whenever you create any website for the product or services you're offering in the market. So you get to know how you can optimize that content and what are the uh, possible fact that is important for you to get to know, that we need to add this industry type, we need to add this sector, we need to do research, we need to analyze the content, we should not add repetitive word, we should not add duplicate words, we should not add someone's content, right? So we need to take care of all the things while doing content optimization for any website. So let's understand this with an example practically. So coming back to your this website, right? Going to click here. Now this is the content part, like this is the content on this website. Scrolling down, no content is there. I'll just go for PW Center. So this is the content part, right? So they are doing IIT JEE preparation, NEET preparation, foundation batches and all, right? So this is the content basically. So how you have to optimize your content, that is important. Now you can have idea that they are using lots of keyword, like offline learning centers are there, face to face online learning centers are there. So what would be their features? Like they are using this website and they are elaborating it to a greater extent. So that is important, right? So this is your content optimization. So any doubt, then you may please ask. Any doubt, then you may please ask. Okay, no doubt. All right, so let's take a break for a few minutes and then we'll continue your topics from here. We will resume your topic for after content optimization. So after content optimization, we'll cover your image containerization and this image optimization, Google Analytics and internal links, URL optimization and this. So 4 topics left, right? Keyword research done, optimization done, meta tag means meta description. बिफोर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे लैंड करे उससे पहले उसको पता चल जाना चाहिए आप क्या ऑफर कर रहे हैं उसके लिए। और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की वेबसाइट पे जितना भी कंटेंट पड़ा है उस पे कीवर्ड्स होने चाहिए, रिपीटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, किसी का कॉपी किया नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम अभी थोड़ी सी ब्रेक लेंगे एंड देन फिर हम ये वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट मी पुट अ टाइमर।
So there is my time.
All right, so welcome back. I hope you joined here back. Okay. Okay, I'm just taking out the questions of chat box. Timer on कर दिया आपने. Yeah, it's my request to all the students, please pay attention to the lecture, right? And okay, no issues. Come back. So let's resume our session. That is on page SEO. So we were here on the screen, right? So now we were about to do image optimization. How to do image optimization, that is important because we have done so far the content optimization. So we have discussed the steps how to do content optimization. क्या क्या steps हैं आपकी content optimization में. अब आते हैं हम लोग इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे. तो क्या होता है जब भी हम एसईओ करते हैं कुछ कहीं पे, तो एसईओ के टाइम पे आपको फॉर एन एग्जांपल आपके कंटेंट में कई बार इमेजेस भी ऐड होती हैं. जैसे कि फिजिक वाला वाली अगर मैं वेबसाइट देखूं तो वहाँ पे बहुत सारी आपके पास इमेजेस भी आपको मिल जाएंगी. फॉर एन इंस्टेंस दिस वन. तो ये इनकी वेबसाइट है और इस पे बहुत सारा कंटेंट है जो कि आपने ऑप्टिमाइज करना है अगर ये आपकी वेबसाइट होती तो. अगर आप अपनी कोई वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज भी करेंगे. तो अगर मैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है. जैसे ये इमेज है, ये पूरी की पूरी इन्होंने एज अ इमेज यूज किया है. तो ये इमेज ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए आपकी. कैसे ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए कि इमेज पे क्लिक करके आप जैसे अभी मैं किसी लिंक पे रिडायरेक्ट होगी जब मैंने इस पे जैसे ये जो इमेज है वो क्लिकेबल है. इस पे मैं क्लिक करूंगी फॉर इंस्टांस क्लिक, तो मैं किसी दूसरे पेज पे लैंड हो जाऊंगी. तो ये ऑप्टिमाइजेशन का एक पार्ट है कि आपकी जो इमेजेस हैं वो स्टैटिक है या वहाँ पे क्लिक करके आप कहीं लैंड हो रहे हो. जैसे मैं यहाँ पे एक उस पे पेज पे लैंडिंग पेज पे लैंड हो गई हूँ. सेम अगर मैं बात करूँ बाकी इमेजेस की, तो यहाँ पे जितने भी इमेजेस यूज हुई हैं जैसे कोटा, कोलकाता, अहमदाबाद, पटना, नोएडा, तो ये जितनी भी इसमें इमेजेस यूज हुई हैं इन इमेजेस को लेके ऑप्टिमाइजेशन कितना है. ऑप्टिमाइजेशन मींस कि इमेज का साइज बड़ा तो नहीं है, प्रॉपरली डिफाइंड है नहीं है. ये सब चीज़ें आपकी ऑप्टिमाइजेशन में ऐड होती हैं. तो अब इसमें आपको करना क्या है. फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, जिससे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एक इमेज. ओके लेट्स सी. इस पे मैं क्लिक करती हूँ कोटा पे. जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखेंगे मैं नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो गई हूँ. तो नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्शन के टाइम पे भी अगर कोई इमेज है तो उसकी कितनी इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन की है. जैसे ये इसके बाद एक और इमेज आ रही है तो ये इमेज भी क्लिकेबल है, ये इमेज भी क्लिकेबल है, ये वाला कार्ड भी क्लिकेबल है. तो हमें ये इंश्योर करना है कि जब भी हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स फॉलो करते हैं अपनी किसी वेबसाइट पे, तो उस टाइम पे कितना हमारा जो लिंक है वो क्लिकेबल है, कितनी इमेजेस क्लिकेबल हैं, कितना ऑप्टिमाइजेशन उन इमेजेस का हो रखा है. तो ये आपका आ गया इमेज ऑप्टिमाइजेशन. तो अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, क्या चीज़ें हमें देखनी है. तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमें साइज देखना है इमेज का, कि इमेज का साइज परफेक्ट होना चाहिए, क्वालिटी इसकी कम नहीं होनी चाहिए. जितना साइज मेंशन है, साइज वैसे मेंशन तो नहीं होता है जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो उसकी वो सारा ओवरऑल डिसाइड होता है कि कितना साइज हमें इमेज का रखना है, कितना नहीं रखना है. बस उसकी क्वालिटी ब्लर नहीं होनी चाहिए, मतलब कंप्रेस करके भी. अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं उसमें आपने कोई भी वेबसाइट आप बना रहे हैं तो उसमें जो इमेज है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए. एक्सेसिबल मीन्स कि आप उस इमेज पे क्लिक कर रहे हो तो आप कहीं पे मतलब लैंड होने चाहिए. तो ये भी इम्पोर्टेंट है. सो दो पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है. अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे जो आपने चीज़ें देखी, रिड्यूस द साइज ऑफ इमेज, क्वालिटी ब्लर नहीं होनी चाहिए उसकी, इमेज का आइडेंटिटी होना चाहिए. अब जैसे कोई इमेज है, जैसे ये वाली मैं एक इमेज की बात करती हूँ. अब तीनों इमेजेस को नोटिस करो कि तीनों इमेजेस में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. सो नेक्स्ट इज
फर्स्ट वाला इमेज आपका बिल्कुल क्लियर है, सेकंड में थोड़ा सा हल्का सा ब्लर है, और थर्ड वाली इमेज में आपका बहुत ज्यादा ब्लर है. सो थर्ड वाला हल्का सा ब्लर है. अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे अलग अलग आप टूल यूज कर सकते हैं इमेजेस को रिसाइज करने के लिए, जैसे पिक्सलर है, फोटो फ्लेक्सर है, पिक मनी है, पिक मंकी है. तो ये अलग अलग फ्री टूल्स भी आते हैं, पे टूल्स भी आते हैं, एडोब के भी बहुत सारे टूल्स हैं. तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है. तो जो इमेज का साइज आपके पास टिपिकली है 70 KB, आप एक स्टैंडर्ड लेके चले, लेकिन इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन दी आपकी वेबसाइट पे आप कितना लोड दे रहे हैं, कितना उसके ऊपर कंटेंट है. फॉर्मेट की बात करें तो जेपीईजी फॉर्मेट आपका बेस्ट माना जाता है ई कॉमर्स साइट के लिए, राइट. अब जब हम इमेज की बात करते हैं तो एक ऑल टैग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोडिंग की लैंग्वेज में. ऑल टैग का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे ऑल टैग अभी है नहीं कहीं पे एक्सप्लेन किया हुआ, बट लेट मी शो. नो, इट्स नॉट बीइंग गिवन हियर. लेट मी कम बैक टू द होम पेज. लेट मी कम बैक. ओके, सो ऑल टैग का मीनिंग है कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो इस पे क्लिक करके इसकी इन्फो आ जानी चाहिए कि ये किस चीज़ के बारे में है आपका. जो भी लिंक है वो किस चीज़ के बारे में है, जैसे ये आइकन है, ये आइकन है, तो ये किस चीज़ के बारे में आपका मेंशन शो कर रहा है. दैट इज योर ऑल टैग. तो ऑल टैग में आपका इमेज टैग होता है. ये वैसे कोडिंग का पार्ट है, आपको आई थिंक इतना डीप डाइव में नहीं समझाऊंगी, क्योंकि आपको भी कुछ नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का. तो ये वर्डप्रेस पे छोड़ देते हैं हम, जब वर्डप्रेस करेंगे तब ऑल टैग देख लेंगे क्या होता है. अदरवाइज लेमन लैंग्वेज में मैं बता देती हूँ. एक HTML का टैग होता है इमेज टैग, और उस इमेज टैग के अंदर जब आप SRC देते हैं कि कौन सी इमेज आप यूज करेंगे, तो वहां पे एक ऑल्ट्रीब्यूशन भी रहता है. तो इसका मतलब है कि आप जब उस इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज बता देगी कि ये रेड रोज की इमेज है, या फिर ये स्टूडेंट टीचर की इमेज है, या फिर ये शूज की इमेज है. जैसे ये वाली इमेज है तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो कर्सर होवर करके मुझे आ जाएगा वो कि ये इमेज जो है वो शूज की है. दैट इज इन दिस ऑल टैग. अब नेक्स्ट है आपका URL ऑप्टिमाइजेशन. URL ऑप्टिमाइजेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट when it comes to SEO, that is an on page SEO. So here is next is oral ऑप्टिमाइजेशन में क्या आपको क्या क्या चीजें हैं जो देखनी है और जो इम्पोर्टेंट है. तो पहले तो URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. रिसोर्स इज मिसिंग है, इट इज सोर्स बट दिस इज रिसोर्स, राइट. सो यहाँ पे आएगा आपका रिसोर्स. तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. अब URL को भी ऑप्टिमाइज करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग SEO पढ़ रहे हैं, और SEO मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. तो वो सारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हम फॉलो करेंगे जो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को फर्स्ट नंबर पे लेके आ पाए गूगल के डेटाबेस में, गूगल सर्च इंजन पे, राइट. तो आपको कीवर्ड भी इंक्लूड करने हैं अपने लिंक्स पे, अपने URL पे, राइट. तो ये सारा कुछ आपका डिस्क्रिप्शन देंगे आप वहाँ पे, आप कीवर्ड ऐड करेंगे. तो कैसे करेंगे हम लोग ये सब चीज़ें, फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं बताती हूँ, ये डोमेन है हमारे पास कोई, ठीक है. तो जब आप कहीं भी सर्च करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, तो ये देखो ये कितना बड़ा डोमेन नेम है मेरे पास. सैमरश एनालिटिक्स, कीवर्ड ओवरव्यू, क्लास 12th कोचिंग. तो ये लिंक बहुत ज़्यादा बड़ा है. सेम मैं यहाँ पे बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वे, देखो ये कितना छोटा सा इनका लिंक है, फिजिक वाला .live, दैट्स इट. तो बहुत छोटा लिंक है इनका, और कितना सटल लग रहा है देखने में ही. तो दैट इज URL ऑप्टिमाइजेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन. URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑप्टिमाइजेशन. तो जो आपका वेबसाइट का डोमेन नेम है या डोमेन लिंक है वो भी ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, राइट. तो ये दो डोमेन के लिंक हैं, तो ये इसमें ये आपका गुड वे है और ये बैड वे है, कि इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है, कहाँ आप जा रहे हैं. तो आपको एक इस चीज़ को भी एक ऑप्टिमाइज्ड करना है. तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, गुड एंड ऑप्टिमाइज्ड URL के, एंड बैड एंड नॉट ऑप्टिमाइज्ड URL के. तो ये गुड वाला है, आप इसमें देखेंगे आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि आप कहाँ पे लैंड कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, और क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग www.domain
SEOsolution.com digital marketing tutorials.html, ये भी सेम है लेकिन इसका एंड का जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं है. दैट इज द ओनली डिफरेंस, राइट? सो दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट्स से हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे. तो ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? हमें अपने यूआरएल को रीडेबल बनाना है, सर्च इंजन के लिए रेलिवेंट कीवर्ड यूज करने हैं, डायनामिक पैरामीटर्स को नहीं यूज करना है, जैसे कि ये वाली चीजें हैं, ये डायनामिक पैरामीटर्स हैं, हमें इनको स्टैटिक रखना है सो दैट इजी टू रीडेबल हो. आपको अवॉइड करना है एंड ऑफ का वर्डिंग का यूज. यूआरएल आपका पेज के टाइटल के साथ मैच होना चाहिए. जैसे यहाँ पे अगर हम फिजिक वाली वेबसाइट पे जाएं तो उस वेबसाइट पे जो ऑफर कर रहे हैं वही आपका डोमेन नेम होना चाहिए, राइट? तो दिस इज और आपका ऑन पेज एसईओ, राइट? सो ऑन पेज एसईओ में अगर हम लोग बात करें तो ऑन पेज एसईओ में जो चीजें आती हैं वो आपके सारी की सारी जो चीजें हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं. तो अभी के लिए हमने जो डिस्कस कर दिया है वो है आपका कीवर्ड रिसर्च ऑप्टिमाइजेशन, मेटा टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन एंड यूआरएल दैट इज कम्स अंडर इंटरनल लिंक्स. यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन कि आपके जो लिंक्स हैं वो ब्रोकन नहीं होने चाहिए, लिंक्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, गुड लिंक होने चाहिए, बैड यूआरएल नहीं होने चाहिए. और यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन में आता है आपका गुड बैड यूआरएल, और इंटरनल लिंक्स में आता है आपके ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए. अगर आप किसी इमेज पे क्लिक कर रहे हो तो वो आपको आगे किसी वेबसाइट, किसी वेब पेज पे लेके जाए. मतलब ये नहीं कि वहीं पे स्टक हो जाए और वहीं पे लोड होता रहे, वो आपको किसी और नए पेज पे लेके जाए. तो इंटरनल लिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, राइट? ये लास्ट में है आपकी कुछ एरर कोड्स हैं कि जब आपकी वेबसाइट अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होती तो कुछ आप एरर कोड देखते हैं 404 पेज नॉट फाउंड. इसका मतलब कि वेब सर्वर पे कोई इशू है, आपकी वेबसाइट अच्छे से क्रॉल नहीं हो रही है, या सर्वर पे कोई इशू है, या आपका लिंक सर्वर तक नहीं पहुंच रहा है. अब एक लास्ट रह गया गूगल एनालिटिक्स एंड वेब मास्टर टूल्स. तो गूगल एनालिटिक्स का मैं एक अलग से टॉपिक आपको करवाएंगे जब आपका वर्डप्रेस का सेशन हो जाएगा उसके बाद. कि वहां पे हम आपको बताएंगे कि कैसे जब आपकी कोई वेबसाइट बन जाती है उसके बाद आप उसको सर्वर पे होस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डोमेन नेम, और उसके बाद कैसे गूगल एनालिटिक्स में रजिस्टर करके आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से यूजर आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं और कौन से यूजर वेबसाइट पे विजिट नहीं कर रहे हैं, राइट? सो ये सब मैंने आपको बता दिया. छोटे मोटे टूल्स जो थे जैसे समरश मैंने करवा दिया, ओवर सजेस्ट की जगह मैंने आपको keyword.tool.io कराया जो कि पेड था, राइट? सो इस तरीके से हम लोग अपना ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, राइट? ओके, सो अब आप मुझे अपने डाउट्स बताएं, जो जो आपके डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, देन चैट बॉक्स में टाइप करें. ओके, सो क्वेश्चन वी हैव, कुछ समझ नहीं आ रहा है. ओके, समझ तब आएगा जब आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे और वीडियोस पहले से देख के आएंगे, सो दैट आपका एक बेस बन जाए. मैम ऑल्ट बटन वाली इमेज शो करना एक बार फिर से. ओके, आपके अकॉर्डिंग बेस्ट कीवर्ड प्लानर टूल क्या है? कीवर्ड के तो बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन सैमरश हम कभी भी यूज़ करते हैं, तो सैमरश
में थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी हो जाता है, थोड़े से उसमें 2-3 फीचर्स और हैं, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का है, कीवर्ड रिसर्चिंग का है, कंपैरिजन का है। तो वी ट्राई टू यूज़ सैमरश। बट इसके अलावा आप अगर आप एज अ स्टूडेंट करना चाह रहे हैं तो आप फ्री टूल यूज़ कर सकते हैं, कीवर्ड डॉट टूल, सॉरी इट्स गूगल कीवर्ड प्लानर, दैट इज़ अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट, मैं आपको बता देती हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर का। In this course, you can also learn how to remove watermark from PDF. How to remove watermark from PDF? How to remove watermark from PDF? No, no, not at all. मैम इस किस टाइप के कीवर्ड चूज करने चाहिए हमें? आप वैसे कीवर्ड यूज कर सकते हैं जिनकी वेटेज ज्यादा हो, कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो, वॉल्यूम ज्यादा हो, वो वाले कीवर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स में बहुत कुछ आता है। तो अगर मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल शेयर करूं, लाइक कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड प्लानर, I need to switch to another account. Just a moment. ये लिंक है, मैं ये लिंक भी शेयर कर रही हूँ। जैसे ये वाला एरर है आपके पास, I'm just going to show you about keyword planner, how does it looks like and how you can do your research with the help of keyword planner। तो जब भी हम keyword planner यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा सा आपको गूगल 2-3 फॉर्मेलिटीज़ के लिए बता देते हैं कि आप रिक्वेस्ट करिए कि 3-4 चीज़ें आपको कैंपेन क्रिएट करने के लिए बोलते हैं। तो मैं अभी जस्ट गूगल एड का कैंपेन क्रिएट कर रही हूँ, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। कल वाली जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको शो किया था कि आपने कैसे अपना कीवर्ड गूगल में अपना कैंपेन शो करना है। तो ये गूगल एड्स का ही एक तरफ का कैंपेन है, राइट। सो वी आर हियर टू दी कीवर्ड प्लानर। तो ये वाला कीवर्ड प्लानर मैं आपको शो करना चाह रही थी कि कैसे आप कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस सिनेरियो में इस गूगल कैंपेन के लिए मैंने यूआरएल यूज़ किया था socialmobileskills.in। तो गूगल ने क्या किया, उसी से रिलेटेड मुझे सारे कीवर्ड सजेस्ट कर दिए, राइट। उसी से ही रिलेटेड सारे के सारे मुझे कीवर्ड यूज़ कर दिए। और ये वाले जो कीवर्ड्स हैं वो मैं जब अपना वेबसाइट गूगल एड्स के लिए लगाऊंगी तब भी मुझे ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी। अगर जो कल का लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था गूगल एड्स पे कि आप अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज की गूगल के ऊपर, तो वहाँ पे भी आपको अपनी ऐड ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐड ऑप्टिमाइज होगी तभी वो फर्स्ट नंबर पे आएगी, नहीं तो वो थर्ड और फोर्थ पे चली जाएगी। तो वहाँ पे भी आपको कीवर्ड यूज़ करने हैं। तो वो कीवर्ड जो आप वहाँ यूज़ करेंगे वो जैसे मैंने यहाँ से ऐड कर दिया कि गूगल ने तो अपने एंड से ये सजेस्ट कर दिया आपको, देख लो, आप कोई भी यूज़ कर लो यहाँ से। सोशल मोबाइल स्किल्स है, लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, ये सब गूगल के एंड से बेस्ट है। और आप देखो गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल पे ही आप सर्च करेंगे, गूगल के डेटाबेस से डेटा उठ के आएगा, तो गूगल ही सजेस्ट कर रहा है, तो गूगल तो बेस्ट सजेशन देगा ना अपने एंड से। बाकी के जो प्लेयर्स हैं लाइक सैमरश है, कीवर्ड्स.io है, आपका एचरेफ है, वो तो अपनी तरफ से असम्पशंस दे रहे हैं, लेकिन जो इस चीज में एक्सपर्टीज है, जिसकी वही ये काम कर रहे हैं, तो वो तो कीवर्ड्स के बेस्ट एग्जाम्पल्स देंगे, राइट।
तो ये आप यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं। हम नए कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं अगर मैं कहूँ कि मुझे क्लास 12th वाला ऐड करना है, क्लास 12th क्लास 12th कोचिंग ऐड करना है मुझे यहाँ पे। मैंने ऐड कर दिया, राइट। तो आप ये वाला कीवर्ड ऐड कर दो, यहाँ से अपनी मर्जी से कुछ और ऐड कर दो, राइट। तो ये सब आपके कीवर्ड के सजेशंस हैं, राइट। So I hope it's clear to you now. So okay, मैम हम इलाहाबाद में हैं और चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को हम भी हमारे बारे में पता चले, तब कैसे कीवर्ड चूज करेंगे? वो तो लोकेशन का हो गया, आप फिर वो लोकेशन प्रेफरेंस दे सकते हैं गूगल एड्स के टाइम पे, लेकिन कीवर्ड्स का दिल्ली वाले भी वही सर्च करेंगे और आपके जो इलाहाबाद वाले हैं वो भी वो सेम सर्च करेंगे। अगर किसी को 12th क्लास ट्यूशन चाहिए, कोचिंग चाहिए और आपका जो प्रोडक्ट है, आप जो कोचिंग देते हैं वो दिल्ली में ही देते हैं, तो आपको दिल्ली के ही लोग आएंगे, मतलब जो सर्च पे आएंगे वो दिल्ली के आएंगे। अगर आपकी सर्विसेज इलाहाबाद में भी अवेलेबल है सेम वेबसाइट की, तो वो इलाहाबाद के लोगों को भी शो होंगी। अगर आप सर्विस एक जगह दे रहे हैं तो फिर वो दूसरी जगह शो नहीं होगी, क्योंकि वो गूगल का एल्गोरिदम काम ही ऐसे करता है, राइट। सो ओके, सो नेक्स्ट है आपका ऑन पेज। ऑन पेज आपका हो गया, अब आपका रहता है ऑफ पेज। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दी ऑफ पेज एसईओ एज वेल। तो ऑफ पेज एसईओ आपका क्या क्या उसमें स्टेप्स हैं वो हम एक बार देख लेते हैं कि ऑफ पेज एसईओ के लिए भी आपको क्या क्या चीज़ें आना ज़रूरी है। तो ऑफ पेज एसईओ में 2-3 चीज़ें हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी आपको। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन टू यू फॉर अ मोमेंट। सो हियर इज़ माई स्क्रीन, राइट। तो आपका आ गया ये ऑफ पेज एसईओ। अब ऑफ पेज एसईओ क्या होता है आपका? Off-page optimization refers to all the measures that can be taken outside the website to improve its ranking on search engine result page. ऑफ पेज एसईओ आपका वो सारे स्टेप्स हैं जो आप अपनी वेबसाइट के बाहर परफॉर्म करते हैं। अभी तक आपने देखा होगा ऑन पेज एसईओ में मैंने क्या क्या किया। मैंने यूआरएल को ऑप्टिमाइज किया, मैंने वेबसाइट के इमेजेस को ऑप्टिमाइज किया, मैंने कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया, मैंने डिस्क्रिप्शंस को ऑप्टिमाइज किया। तो ये सब चीजें की, और ये सारी चीजें मैंने कहाँ पे परफॉर्म की? वेबसाइट के ऊपर, ऑनलाइन, राइट। वो सारी चीजें जो आप वेबसाइट के बाहर परफॉर्म करेंगे वो ऑफ पेज एसईओ में आता है। जैसे कि आप अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे अपनी वेबसाइट को शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो इससे रीच बढ़ रही है आपकी वेबसाइट की, तो वो आपका ऑफ पेज एसईओ में आएगा। आप कोई लिंक एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, या मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हैं, मैसेजेस में शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, तो वो आप लिंक एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट का, इससे आपकी वेबसाइट की रीच बढ़ेगी। आपकी फॉरम लिंक बिल्डिंग वेबसाइट्स हैं, जैसे कोरा.com हो गया, वहां पे जाके आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, उसका लिंक सबमिट करा सकते हो। जैसे जस्ट डायल है, जस्ट डायल में आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं, तो आप अपनी लिंक बिल्डिंग वहां से कर सकते हैं। आप कॉम्पिटिटिव, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी एनालिसिस कर सकते हैं कि वो लोग क्या ऑफर कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं। आपकी पेज की रैंकिंग जो है उसका स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। जो टेक्निक्स हैं ऑफ पेज एसईओ में वो है इंपॉर्टेंट: ईमेल मार्केटिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग, लिंक बिल्डिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया कि आप अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग कंटेंट की हेल्प से करोगे। जैसे कि कोरा.com, आपको पता होगा कोरा.com में आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसके आंसर्स प्रोवाइड करते हैं, और आपने देखा होगा वहां के कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने आपके क्वेश्चन का आंसर तो दे रखा होता है, साथ में उन्होंने अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में भी बताया होता है। तो वो कंटेंट मार्केटिंग होगी एक तरफ से, कि वो कंटेंट लिख रहे हैं वहां पे और कंटेंट में आपके मार्केटिंग भी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की। ईमेल मार्केटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर आपका एक अलग से सेशन रहेगा कि ईमेल मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की रीच कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स। ईमेल्स मार्केटिंग के कुछ टूल्स रहते हैं, स्टैटिक, कुछ ऑटोमेटेड टूल भी होते हैं, राइट। तो कुछ ऑटोमेशन के टूल्स भी हैं, कुछ स्टैटिक टूल्स भी हैं, तो ये सब हम कैसे यूज कर सकते हैं। ब्लॉगिंग का है कॉन्सेप्ट, आपको पता है ब्लॉग्स क्या होते हैं? medium.com, जस्ट शेयरिंग एन एग्जांपल, medium.com, राइट। अभी आप देखेंगे क्या है ये। मीडियम इज एन अमेरिकन ऑनलाइन पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, और ये कुछ नहीं है, ब्लॉग का
आर्टिकल है। जैसे मैं जाऊंगी ब्लॉग पे, यहाँ पे व्हाट वी हैव रीडिंग, वर्क लाइफ बैलेंस, द बेस्ट लाई एवर टोल्ड। अब आप देखो ये क्या है, एक ब्लॉग है, इसमें लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स पे अपडेट दे रखी है। बिकम अ फ्रेंड ऑफ मीडियम, अच्छा ये तो फीचर्स हैं। व्हाट वी आर रीडिंग इन डिफेंस, व्हाट वी आर रीडिंग एडवाइस, वुड यू गिव योर यंगर सेल्फ। तो ये ब्लॉगिंग के आर्टिकल। अब जैसे मैं इसको ओपन करती हूँ, हम पहुंच गए यहाँ। अब देखो ये सारा का सारा एक क्वेश्चन की फॉर्म में था, राइट। इसका आंसर जो दिया है वो दिया है स्कॉट लैम ने। नॉट आंसर बट इस ब्लॉग को जिसने लिखा है स्कॉट लैम ने। एंड यू कैन ऑल्सो डू दिस। आप जाएं यहाँ पे कोई टॉपिक सेलेक्ट करें, उस पर जाके ब्लॉग लिख दें। अब ये देखिए आप क्या क्या इन्होंने चीजें लिखी हैं, राइट। तो इसमें क्या रहा, इन्होंने अपने क्या बताया, इन्होंने इस क्वेश्चन का ब्लॉग लिखा इन्होंने। और यहाँ पे दो लिंक भी दिए हैं, आप इन्होंने देख लो। सॉरी दो नहीं है, एक दो तीन, तीन लिंक्स हैं। तो मैं इस लिंक पे क्लिक करती हूँ, अब देखना ये कहाँ लेके जाएगा मुझे। ये लेके चला गया इसके दूसरे ब्लॉग पे। तो देखो कैसे यहाँ पे लिंक बिल्डिंग हो रखी है, एक लिंक से दूसरे लिंक पे, दूसरे लिंक से तीसरे लिंक पे। तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। और इससे क्या हो रहा है, जो लैम स्कॉट लैम ने एक आर्टिकल लिखा था उसको तो यूजर्स ने पढ़ लिया, लेकिन इन बिटवीन उसी आर्टिकल के अंदर यूजर ने जब लिंक पे क्लिक किया तो वो यूजर दूसरे लिंक पे रिडायरेक्ट हो गया। और जब दूसरे लिंक पे रिडायरेक्ट हो गया वो यूजर्स, तो हुआ क्या, उस दूसरे वाले ब्लॉग पे भी ऑडियंस आ गई। तो बेसिकली तो रीच पड़ी ना अकाउंट की। तो बस वही चीज है कि आप इंटरनल लिंक बिल्डिंग से भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की रीच बढ़ा सकते हैं, राइट। बस हियर, राइट। लिंक बिल्डिंग आपका हो गया, ब्लॉगिंग आपका डन, गेस्ट ब्लॉगिंग डन, ईमेल का एक अलग से टॉपिक हम लेंगे, और कंटेंट मार्केटिंग तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। अब कुछ आपके टूल्स हैं, इसमें से मैं एक दो यूज कर देती हूँ। कुछ पेड्स हैं कुछ फ्री हैं, तो लेट्स से दो तीन देख लेते हैं। सर्च कंसोल का एक अच्छा, इसको हम करा सकते हैं। सो मैं ऑफ पेज एसईओ के लिए गूगल ट्रेंड्स यूज करूंगी। गूगल ट्रेंड्स में हम कैसे यूज कर सकते हैं कि आपके कंपटीशन का ट्रेंड कहाँ पे है, आप कहाँ पे लाई करते हैं। ओके, आई वांट टू चेक वन थिंग। अब मुझे क्या चेक करना है मैं वो भी आपको यहाँ पे बताती हूँ। जेट से मुझे कंपेयर करना है जी। मैं कोई दो कंपनीज पिक करती हूँ, जैसे है हमारे पास डिलॉयट एंड केपीएमजी, ठीक है। और मैंने दो कंपनीज सेलेक्ट कर ली हैं, डिलॉयट एंड केपीएमजी। अब मुझे इनका कंपैरिजन करना है, इंटरेस्ट ओवर द टाइम। रेड वन इज केपीएमजी, ब्लू वन इज द डिलॉयट। कितने टाइम का कंपैरिजन मुझे चाहिए इनका, पास्ट 30 डेज का, राइट। किस कैटेगरी में चाहिए मुझे, मैं ऑल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेती हूँ। आप ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कंपैरिजन चाहिए, मैं बस सर्च करूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि डिलॉयट जो है वो लेसर पाथ पे है। कौन कौन से रीजन से आपके ब्रेकडाउन है वो भी यहाँ पे शो किया है। ओके, मैं करती हूँ यहाँ पे पास्ट 12 मंथ्स सो दैट वी हैव लार्जर डेटा। तो आप देखेंगे केपीएमजी इज बेटर देन डिलॉयट इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द फैक्ट्स, राइट। अब मैं ओवरऑल कंपैरिजन करती हूँ। देखिए केपीएमजी का जो इंटरेस्ट है वो कहाँ कहाँ के लोग सर्च करते हैं। तो यहाँ से भी मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि केपीएमजी के बारे में क्या चीजें हैं जो सर्च हो रही हैं। जैसे ले ऑफ्स का सबसे ज्यादा सर्च किया है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हर चीज के सिलेक्शन के लिए। अब मैं यहीं पे देखूंगी अगर अलग टाइप के मैचेस का, तो अलग टाइप के आपको कंपैरिजन मिलेंगे। सो ये एक आपका टूल है जिसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं दो एंटिटीज का, दो कॉम्पिटिशन्स का, अपने प्रोडक्ट का किसी और प्रोडक्ट के साथ। अगर यहाँ से कोई डाउट है तो प्लीज आप कंफर्म करें।
यस प्लीज, अगर किसी को कोई डाउट्स हैं यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया तो आप प्लीज कंफर्म कर। हाँ जी, ऑन पेज एसईओ बताना थोड़ा शॉर्ट में। ऑन पेज एसईओ ये होता है कि आपको अपनी वेबसाइट की रैंकिंग गूगल में बढ़ानी है, और उस रैंकिंग को बढ़ाने के लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे, दैट इज ऑन पेज एसईओ। अच्छा, आई एम रियली सॉरी रिम्पल, आई जस्ट लॉस्ट योर डाउट। मैम ऑल्ट बटन, हाँ ये वाला डाउट आपने पहले भी मुझे पूछा था। आई एम सॉरी, इट वाज स्किप्ड इन माय माइंड। ओके, सो ऑल्ट इमेज का ऐसा रहता है, जैसे कोई इमेज है मेरे पास, लेट्स स्क्रीन शेयर करने दो पहले मुझे। या इट्स शेयर्ड। जैसे ये फिजिक वाला वाली वेबसाइट है, तो ऑल्ट इमेज का एग्जांपल मैं आपको अच्छे से देती हूँ। जैसे ये कोई मेरे पास इमेज है, राइट? ये इसका डॉक्यूमेंट टाइप है HTML, और ये इमेज का हेडिंग है, और ये मेरी इमेज का सोर्स है, और इसमें मैंने इमेज यूज किया girl.jpg, और ये है इसका ऑल टैग। बाकी विड्थ इसकी स्पेसिफाई करी है और हाइट स्पेसिफाई करी है। तो जो ऑल टैग है कि गर्ल इन जैकेट, तो ये कैसे शो होगा? जैसे मैं इसको रन करती हूँ, रन, तो आप देखेंगे कि इस इमेज के ऊपर, जब इस इमेज पे हम जाएंगे, कर्सर होवर करेंगे, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन शो करेगा। ये पहले इसका नॉर्मल स्टैटिक है, अब मैं कर देती हूँ यहाँ पे ब्राउन जैकेट, रन। इमेज एलिमेंट इसका टाइटल आ गया, और ये इसका आपका इमेज का डिस्क्रिप्शन आ गया। तो बस इमेज का डिस्क्रिप्शन है ऑल टैग। अब ऑल टैग इतना भी यूज नहीं होता, पहले की स्ट्रेटेजीज में ज्यादा यूज। अब मैं इसको हटा देती हूँ तो भी ये चल जाएगा, कोई एरर नहीं देगा। जैसे मैं रन कर दिया तो ये सिंपल चल जाएगा, राइट? तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप कैसे इसको यूज करेंगे। बाकी फिजिकल वाला वाली वेबसाइट पे भी मैं बता देती हूँ आपको। लेट्स से दिस इज द इमेज, ये इमेज है मेरे पास कोई भी, तो इस इमेज का डिस्क्रिप्शन क्या है, दैट इज ऑल्ट ऑल्ट टैग। ठीक है, कि ये इमेज किस चीज के बारे में है आपकी, वो एक ऑल्ट टैग है। सेम अगर मैं कोई और करूं, जैसे ये वाला हो गया आपका, तो इस इमेज के होवर पे ये इमेज किस टाइप की है। नेक्स्ट है आपका शो के बारे में उन्होंने बताया है, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है कि ये इमेज किस चीज के बारे में आपको बता रही है। सो दैट इज द थिंग। ओके, और कोई डाउट? Yeah, evening batches are also possible. We are planning it for the next coming week, so please wait for the time. Most probably it's from 9th or 10th, I guess. Not on 10th, on 9th. So we'll shortly inform you about that as well when we are planning to start evening batches, so that for the students who are not able to come in the morning batches can attend our classes in the evening batches as well. All right. All right, so any other doubts do we have today? Then I can take it. Otherwise, that's all about for today's session. And for tomorrow there will be holiday. Sunday will be holiday as well. And on Monday we would be taking your doubts on the same topic and your session on WordPress or on Facebook or Twitter, right? So either it's Facebook, Twitter, or WordPress. So out of these four topics, we will be taking your session, right? So I hope there's no doubt. Okay, thank you, Rimple. Thank you, Monica. Thank you, Muskan.
That's all for the session. Thank you so much. Have a good day and see you very soon. Thank you.